Yeah. Okay. So as you can see on the screen, the name of the topic is logical puzzle. लॉजिकल पजल हम लोग जो है रीजनिंग की बातें तो हम लोग कर ही रहे हैं एंड आई एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू many a times that reasoning is nothing but a application of the logics. The subject is nothing but an application of the logics. Here you will be dealing with different type of things. आपको जो है अपनी logic को apply करना है और questions को solve करने हैं, marks लेना है, आगे बढ़ना है, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको. This is a very simple topic, and particularly this logical puzzle. Now, again, there are different type of persons who have different perception about this topic. When this topic is asked in bank PO examination, at that time it becomes very difficult. When this topic is asked in CAT examination as a part of logical reasoning, then this topic becomes very difficult. Why it becomes difficult? Because of the different type of variables they introduce. But when this topic, again, the basic idea is the same. The basic idea is the same. What is the basic idea, sir? Apply your head. Apply your head. Try to decipher the information. किसी लाइन में कुछ लिखा होगा, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होगी, बट कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास इनडायरेक्टली गिवन होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग A is greater than B. अगर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया A is greater than B, तो इससे आपको एक चीज तो पता चलता है. That means what? Either if A is greater than B, that means what you can analyze from here. What are the inferences that you can make from here? The first inference that you can make from here is A can take all the values which are more than B. Okay? The second inference that you can make here is A is not equal to B. A is not equal to B. Now this was the direct information. This is somewhat an indirect information. कि A जो है वो B के बराबर नहीं है. This is an indirect information. There are many cases when you have direct informations, when you have indirect information. I don't know what are the topics that you have studied in social science, but social science में कई जगह ऐसा होता है कि हमें direct information भी मिलती है और कुछ information हमारे पास इनडायरेक्ट होती है, जो कि हमें अपने हिसाब से हमारा दिमाग अप्लाई करके हमें उन इंफॉर्मेशंस को यूज करना पड़ता है. इन्हीं सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशंस के संगम से जो टॉपिक बनता है उसे हम लोग लॉजिकल पजल बोलते हैं. होगा कुछ नहीं, एक पजल होगी जिसमें आपको दुनिया भर का लॉजिक लगाना पड़ेगा. लॉजिक कहाँ से लगाएंगे सर? छोटी छोटी चीजें, इंफॉर्मेशंस को देखेंगे और उन्हीं इंफॉर्मेशंस के हिसाब से we will solve the question. We don't have much of the question in the topic, but again this topic is important क्योंकि एक टॉपिक पे अगर आप इसको 5 मिनट भी देते हो, suppose you are giving your 5 precious minutes in the examination for this topic, and then that is also worth, because the 5 minutes spent on the topic will give you 5 marks. The 5 minutes spent on the topic will give you 5 marks. क्वेश्चंस तो नॉर्मली आते हैं, वो पजल पैराग्राफ बेस्ड आते हैं. पैराग्राफ को पढ़ो. अब कैसे करेंगे सर? पैराग्राफ को पढ़ते जाओ, इंफॉर्मेशंस लेते जाओ, इंफॉर्मेशन को ट्राई टू राइट इंफॉर्मेशन समवेयर, कहीं पे इंफॉर्मेशंस लिख लीजिए. उसके बाद क्या होगा, जिस क्वांटिटी के बारे में, जिस वेरिएबल के बारे में आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्टार्ट फ्रॉम देयर. कई बार ऐसा होगा मल्टीपल केसेस बनेंगे, तो मल्टीपल केसेस बनेंगे तो अगर आपके पास कोई वेरिएबल दिया हुआ है और इफ यू आर गेटिंग मल्टीपल केसेस, तो डोंट यूज दैट वेरिएबल, बिकॉज इट इज जस्ट ए वे टू वेस्ट योर टाइम. इट इज जस्ट ए वे टू वेस्ट योर टाइम. सो डोंट यूज दैट वेरिएबल. उसी वेरिएबल्स की बात करो, उसी वेरिएबल को लो जिसके बारे में आपके पास
कम से जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज थ्योरेटिकली बात करने से कोई फायदा नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। The question on the screen is read the information read the information given below and answer the questions that follow. अच्छा, एक बात याद रखना है कि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजिंग नाम देंगे। जैसे ये देखिए आप लोग, ये जो नाम दिया हुआ है एमी, बीमी, कार्ल, डान, इको, ये क्या है? ये बेसिकली दे आर ए बी सी डी ई, ठीक है। ये ए बी सी डी ई है और कुछ नहीं है, बस। और ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसमें इतना पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सॉल्व करोगे तो एमी, बीमी इतना लिखने की जरूरत नहीं, ए बी सी डी ई लिख दो और उसके बाद आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, यू गाइज हैव try to solve the question, try to make the tree, and then we will discuss the question. We will meet after 2 minutes or 3 minutes. टेक योर ओन टाइम। पहला क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, 2 मिनट बाद बात करते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्ट। द क्वेश्चन इज सेइंग, अब कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ये समझना पड़ेगा। द वन हु इज ट्रेवलिंग टू चाइना डिड नॉट ट्रेवल बाय बाइक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी चेंज द कलर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने चाइना को सी से रिप्रेजेंट किया, बाइक को बी वाई से रिप्रेजेंट किया, और सी को एक एरो बना के इस तरीके से क्रॉस कर दिया। दिस इज जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग दैट चाइना जो है हम बाइक से नहीं जा रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं, द सेकेंड इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग, दार्जिलिंग इज नॉट कनेक्टेड bicycle to US and China. That means the person cannot go to China by cycle, and the person is also not going to China by bicycle. तो चाइना जहां पे भी होगा, it will have only 3 options. बाइसाइकिल और साइकिल हमारे हट चुके हैं, तो इट विल हैव ओनली 3 ऑप्शंस, दैट इज रॉकेट, टाइम मशीन और बाय याच। याच या जो भी बोलना है वो उसको बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो सिंस वी वेर, क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मेरे पास चाइना के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, तो मैंने चाइना को मार्क कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप स्टेटमेंट नंबर 2 से आप स्टार्ट कर सकते थे। यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन बाय स्टेटमेंट नंबर 2। द स्टेटमेंट नंबर 2 इज, कॉल वेंट टू कनाडा बाय याच। तो सी कनाडा, याच, खत्म। बी वेंट टू यूके बाय टाइम मशीन, बी यूके, टाइम मशीन। अब देखो, पहला जो अपन ने कंक्लूजन बनाया था ये वाला, और इन दोनों स्टेटमेंट से व्हाट आई गॉट टू नो दैट द पर्सन हुएवर इज ट्रेवलिंग टू चाइना ही विल ट्रेवल बाय रॉकेट। क्यों सर? क्योंकि बाइक से ये जा नहीं सकता, साइकिल से ये जा नहीं सकता, टाइम मशीन और याच मेरी खत्म हो चुकी हैं। सो बेसिकली द पर्सन हुएवर विल बी गोइंग टू चाइना विल बी गोइंग बाय रॉकेट। दूसरी चीज, मैं इतना चाइना चाइना बोल रहा हूँ कि शिव सैनिक मेरे पीछे ना पड़ जाए। भाई अगर मैं मंडे को क्लास ना लूं तो प्लीज मेरे को हॉस्पिटल आ जाना देखने के लिए। पता चला शिव सैनिक आके मुझे मारने लगे, मैं इतना चाइना चाइना चिल्ला रहा हूं तो। चलो, इट वॉज ए जोक। सो नाउ अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, डैन इज ए पर्सन हु इज ट्रेवलिंग बाय बाइक। यानी कि ये जो डैन है, ही वोंट गो टू चाइना, क्योंकि चाइना तो आप बाइक से जा ही नहीं सकते हैं। डैन चाइना जाएगा नहीं। बी इज ऑलरेडी गोइंग टू यूके, सी इज गोइंग टू कनाडा, और अगले लाइन में क्या दिया हुआ है, ई इज ट्रेवलिंग बाय रॉकेट। दैट मीन्स ई विल ट्रेवल टू चाइना बाय रॉकेट। तो अब मेरे पास, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि मेरे पास 3 लोगों के बारे में मुझे पता चल गया। बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, सी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ई के बारे में मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने ये पता लगा लिया कि ई इज गोइंग टू चाइना बाय रॉकेट।
ठीक है, अब बचता है मेरे पास क्या? अब मेरे पास बचा क्या? मेरे पास एक तो साइकिल बची जिसके बारे में मुझे पता लगाना था, दूसरा मेरे को रशिया को कहीं फिट करना था, और तीसरा मेरे को यूएस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो साइकिल से आप यूएस तो जा नहीं सकते हो, साइकिल से आप यूएस और चाइना जा नहीं सकते, चाइना आप ऑलरेडी जा चुके हो रॉकेट से, तो आप साइकिल से कहाँ जाओगे? रशिया ही जाओगे। साइकिल से आप यूएस तो जा नहीं सकते हो, साइकिल से फिर आप रशिया ही जाओगे। उसके आगे की चीज क्या है? दे हैव ऑल स्पेसिफिकली मेंशन दैट डी इज ट्रेवलिंग बाय बाइक, दैट मींस डी विल नॉट गो टू रशिया, तो डी जो है वो यूएस जाएगा। सो बचा कौन? ए विल गो टू रशिया एंड ही विल ट्रेवल बाय साइकिल, डी विल गो टू यूएस एंड ही विल ट्रेवल बाय बाइक। सो फाइनली so finally we have our table, और इस टेबल में हमने बना दिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो एक बार कोई जना इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना दिक्कत हो। ए इज गोइंग टू रशिया बाय साइकिल, बी इज गोइंग टू यूके बाय टाइम मशीन, सी इज गोइंग टू कनाडा बाय याच, D is going to US by bicycle, and E is going to again China by rocket. Let us now jump to the questions. The questions are: which of the following is not combination of person and the mode of transport is not correct? अब बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है? ए इको टाइम साइकिल, मशीन, कौन सा? ई बी एंड टाइम मशीन। English. हाँ, बी एंड टाइम मशीन, बिकॉज नहीं, ये तो सही है यार, बी इज ट्रेवलिंग बाय टाइम मशीन ओनली। Sir, E and time machine. ई एंड टाइम हाँ, okay, मशीन, yeah, yeah, ई yeah. एंड टाइम मशीन। Okay, fine. So the answer of this question will be E and time machine. देखो वहां पे सही किया तो यहाँ तो सही करना मजबूरी है, इसका तो सही होना इसकी मजबूरी है भाई। चलो नेक्स्ट इज which of the following combination is true for Dan? अब बताओ which one is true? यूएस बाइक, Sir, US US and and bike. bike. Okay, US and so bike. so this is the correct answer of this question. चलो आगे देखते हैं। अब इसका बताओ, what will be the answer here? चाइना साइकिल, China cycle. एक मिनट चाइना बेटा। साइकिल, so here the answer will be China cycle. So ये वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे बेटा नॉट करेक्ट और करेक्ट के बीच में पंगा फंस सकता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, द पर्सन इज ट्रेवलिंग टू चाइना इज ट्रेवलिंग बाय विच मोड? ये तो मुझे याद हो गया था, Rocket. कहाँ गया? Rocket. ठीक है, तो दिस इज Rocket. ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 5 वाज who among the following travel to China? कौन है भाई? Who is Eco. traveling to Eco. China? So the Eco. option number C is the correct answer. अब बताओ मेरे को आसान है कि नहीं है? Yes, बताओ sir. मेरे को ये टॉपिक आसान है कि नहीं है? आसान है ना, इसीलिए बोलता हूँ बेटा रीजनिंग से घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रीजनिंग से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, कभी मत घबराना रीजनिंग से, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था एक, राइट? अगर याद हो आप लोगों तो जल्दी से कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी से करते इस क्वेश्चन को। देन इसको अगेन द सेम थिंग, हमें सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम, कौन किसका रिश्तेदार है क्या है, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आएगा वो अपन क्वेश्चन को करेंगे। क्या हुआ? somebody is laughing? तो कौन किसका रिश्तेदार है पहले उसको पता करेंगे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। सो करना यहाँ पे ये है कि पहले टेबल बनाते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार टेबल बन जाएगी तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो ही जाएगा। आई विल नॉट प्रमोट दिस आइडिया कि क्वेश्चन देखो उस हिसाब से टेबल बनाओ, बिकॉज दैट विल लीड टू, जल्दीबाजी में कई बार गलत हो जाता है, तो आई वोंट प्रमोट दैट आइडिया। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, द टाइम यू हैव इज 2 minutes, यू कैन आल्सो टेक 3 minutes। सो आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं हमारे आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं करते। सो लेट अस गेट स्टार्टेड।
सो बी इज ए टीचर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, टू whom इज द टीचर मैरिड? टीचर की शादी किससे हुई थी भाई? देख लो एक F. बार यहाँ पे, F. टीचर की शादी एफ से हुई थी। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि जिससे टीचर की शादी हुई है उसका प्रोफेशन क्या था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्लर्क? क्लर्क कौन है यहाँ D. पे? E. डी ना। सो ही इज द क्लर्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरिड कपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर, कौन कौन से मैरिड कपल्स? C, D, C, B, D F. and FB. CD CD and and FB. F, CD and FB. Yes, So sir. these are the married couples here. Next question. अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which of the following information is required from the above? Okay, there are, एक second, there is some problem in the question, I guess. Which of the following information is required from the above? Leave this question. I guess there is some error in this question. क्या? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, no error in this question. आपको ये बताना है कि इस फैमिली ट्री को सॉल्व करने के लिए क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी। Now this is a unique type of question. आपने आपने इंफॉर्मेशन को देख के आप लोगों ने एक फैमिली ट्री बनाया, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन, वाज देयर एनी इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, और ऑल द इंफॉर्मेशन आर All are रिक्वायर्ड? necessary. Sir, all are All are necessary, sir. necessary. All will be required. So the correct answer of All this are question, so the correct answer of this question will be, my dear friends, that all the above informations are necessary. So this is what the status, this is what the status was. A is artist, he is unmarried. B is teacher, he is female, and he is married. B is married. C is artist, who is a male, who is married. इस तरीके से ये जो है आपका एक फैमिली ट्री Sir? हाँ Sir, बोलिए। how can we determine the gender of C and D in that it is given? Yes, sir. Same question. सी और डी का जेंडर आपने कैसे डिटरमाइन किया है? ओके, लेट अस रिविजिट द क्वेश्चन वंस मोर। देखो इसमें ये बोला है कि वन इज क्लर्क, टू आर द आर्टिस्ट एंड बोथ द डॉक्टर्स आर ऑफ सेम जेंडर। यहाँ से डॉक्टर्स का तो जेंडर मुझे पता चल गया कि दे बोथ आर मेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड सी आर द सेम प्रोफेशन, तो ए और सी को मैंने सेम प्रोफेशन में कर दिया, ठीक है। ए इज एन आर्टिस्ट, ई इज ए मेल डॉक्टर, बोथ आर अनमैरिड। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द जेंडर. It is not possible to determine the gender. Basically, they have done here some mistake. उन लोगों ने apparently इन लोगों ने ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, किस किस का जेंडर पूछना था, पूछ रहे थे आप लोग? सी और C and C D. or D. सी और डी का जेंडर पूछ रहे थे ना, और सी की शादी डी से हुई है, राइट? सी वाज मैरिड टू डी, आई थिंक। तो इट इज Yes, नॉट sir. पॉसिबल टू डिटरमाइन द जेंडर. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द जेंडर. इन लोगों ने जस्ट अपेरेंटली बोल दिया कि इसकी शायद ये वन इज ए मेल एंड वन इज ए फीमेल. द आर्टिस्ट इज मैरिड टू, यस यू आर, बोलिए. No, sir, I thought you weren't having my voice. No, no, you are audible. You are audible. So the correct answer will be that it is not possible to determine the gender of C and D. ठीक है? So don't be in any sort of confusion. It was not possible to determine. कई बार ऐसा होता है, अब आपसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे मान लो ऐसा पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ सी और व्हाट इज द जेंडर ऑफ डी. सो विदाउट फीलिंग एनीथिंग, you should Data write inadequate. there that it cannot be determined. अगर डेटा इनएडिक्वेट दिया हुआ है तो डेटा इनएडिक्वेट को मार्क करो, अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड दिया है तो कैनॉट बी डिटरमाइंड को मार्क करना. नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज और कैनॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है तो कैनॉट बी डिटरमाइंड को मार्क करना, नन ऑफ दीज को मत मार्क करना. नन ऑफ दीज का ये मतलब होता है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस में से कोई सही नहीं है.
कैनॉट बी डिटरमिन्ड का मतलब होता है आप स्ट्रेट अवे यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन, खत्म। आप कुछ भी ऑप्शन ला के दे दो, मैं बस ये कहूंगा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन, दैट्स इट। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन, प्रोबेबली द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 6 lectures are to be held from Sunday to Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। ठीक है, 7 दिन में 6 lectures होंगे, यानी कि there will be a gap of 1 day। Only 1 lecture will be held per day and according to the following conditions। Now this is a very standard question। जब भी आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करोगे, अगर फ्यूचर में भी कभी करोगे, लॉजिकल रीजनिंग का जहां पे भी टाइप आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है। कभी प्रोफेसर्स का नाम दे देंगे, कभी सब्जेक्ट्स का नाम दे देंगे, और ये क्वेश्चन जरूर आता है। सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन 2 minutes और 3 minutes। वैसे तो आप लोग जल्दी कर लेते हो, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल हैव ए पॉज, then we will meet after 2 minutes starting। At that time I got a feeling that यहाँ पे इन्होंने ये बोला है 2 days leave should be provided between D and E। तो D और E के बीच में basically there should be 2 days gap। तो I have 2 conditions, या तो मैं D को यहाँ पे लगा के फिर E को यहाँ पे लगाता हूँ, but again it is violating some of the conditions। So the only possible case where my D can be is this one, and the only possible case where my E can be is this one। देखो multiple cases बनेंगे, यहाँ पे multiple cases बनेंगे। The finally the arrangement that you will get is Sunday को you will have D, Monday को you will have leave, Tuesday को B, Wednesday को E, Thursday को F, and Friday को it will be C, and Saturday को it will be A। बेसिकली करना कैसे है इस क्वेश्चन को, let us try to solve this question by taking different cases। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं by taking different cases। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आप एक काम करो, आप okay wait, somebody is saying something। okay, very good। So let us try to take the different cases। कैसे लेंगे सर? अरे यार चल जा भाई, एक सेकंड। हाँ, my pen is behaving erratically। Let us take different cases। यहाँ पे काम कीजिए, आप मंडे लिख दीजिए M, यहाँ पे ट्यूसडे बना दीजिए, यहाँ पे वेडनेसडे बना दीजिए, जैसे करना है वैसे कर दीजिए। Here it will be Thursday, next it will be Friday, next it will be Saturday। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इनका कहना है कि सी विल बी लेक्चर बी विल बी कंडक्टेड ऑन ट्यूसडे को बी होगा, ये मुझे पता है, ये एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई है। एंड डी विल नॉट बी कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर बी, यानी कि यहाँ पे डी मेरा नहीं हो सकता है। सो दिस प्लेस विल बी फिल्ड बाय ईदर ए और सी और ई और एफ। यहाँ पे आई एम हैविंग 4 पॉसिबिलिटीज, ए सी ई और एफ। आगे बढ़ते हैं। डी विल बी कंडक्टेड एग्जैक्टली बिफोर द लीव। अब एक दिन कहीं तो छुट्टी होगी ही, एक दिन कहीं तो छुट्टी है, और उस छुट्टी से एक दिन पहले मेरे पास, उस छुट्टी से एक दिन पहले मुझे बी को उस छुट्टी से एक दिन पहले मेरे को डी को कंडक्ट करवाना था। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, दिस इंफॉर्मेशन इज देन रिडंडेंट बिकॉज बी को आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि बी जो है वो ट्यूसडे को होगा, तो बी जो है वो मेरा ट्यूसडे को है और डी मेरा यहाँ पर नहीं है। सो आई एम सॉरी, नथिंग इज रिडंडेंट हियर। सो अब मुझे ये देखना होगा कि किस दिन मैं छुट्टी लगाऊं। नाउ आई एम हैविंग 6 पॉसिबिलिटीज फॉर छुट्टी। एक दिन यहाँ छुट्टी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ भी 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 हो सकती है। कहीं भी दिन मेरे पास छुट्टी हो सकती है।
नेक्स्ट इज 2 days लीव शुड बी बिटवीन ई एंड डी. अब देखो बेटा, नाउ Sir, यहाँ से leave शायद cannot be on Wednesday. लीव कैन नॉट बी ऑन वेडनेसडे. व्हाई? Sir, because D is exactly before the leave, and at Tuesday it is B. Okay, good. Now the thing is, as you have exactly said, D is exactly before the leave, and this Tuesday को हम already B पढ़ चुके हैं, so this cannot, this day Sir, cannot even be my Thursday leave. cannot be. Sir, even Why Thursday Thursday cannot cannot? be because on Wednesday. Sir, because on Wednesday D cannot be. Yes. So now from here, from this information, you can continuously, you can eliminate many of the informations. So this cannot be the leave, this cannot be the leave. So after analyzing all the situations, what Sunday. you, now why Sunday? Why Sunday cannot Sir, be the leave? Because before Sunday nothing is हाँ, there. before Sunday तो कुछ है ही नहीं. So after analyzing, what you are finding that this will be the leave day and this will be my D. तो ये मेरा D हो गया, ये मेरा लीव हो गया, ये मेरा B हो गया. अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फिर से आप इसी तरीके से अरेंज कर दो. C will be conducted immediately after F. अब आगे का बताओ भाई, आगे का बताओ. Sir, there are 2 day leave between 2 days between E and D. So, sir, E will be at Wednesday because Monday E and will Tuesday be we at skip. Wednesday. Yes, E will be at Wednesday since there are 2 days leave between E and D. So E will be at Wednesday. अब F कहाँ पे आएगा? A Thursday को हो नहीं सकता, तो A will be either on Friday or on Saturday. But they have said that C will be conducted. एक मिनट बेटा. C will be conducted immediately after F. So this will be C, this will be F, this will be A. हाँ बोलिए, बताइए. I was going to tell the answer. Okay. So this is basically the answer. अब एक बार कोई जना note कर लो. So quickly we will solve the questions. ठीक है, just note it. So quickly we will solve the questions. Question number 1. Question number 1. How many lectures are between C and D? C और D के बीच में. Wait यार. 1 lecture. How many lectures are between C and D? C और D के बीच में, C और D के बीच में 1 or 2? I am getting 3 here. Yes, sir, 3. 3 होंगे ना, एक F होगा, एक E होगा और एक B होगा. There will be 3 lectures between C and D. So the correct answer of this question will be just a minute. Huh? Sir, if we Hello? count from downwards, it would be only one lecture, like after C, A, and then D. After C is A. नहीं, हाँ. Sir, actually I Okay. did the same thing, but it is given from Sunday to Saturday, so we cannot do like that. संडे टू सैटरडे दिया ना बेटा, इसलिए आप सी से ए तक आप जो है सी डी से सी के बीच में काउंट करोगे. आप उल्टा नहीं जा सकते, दैट इज व्हाई इट विल बी 3. Okay, next question. Which of the following will be on the last day? I A. think A, है ना? A. Yes, sir. A. Okay, next question. Which information is required to organize the lectures? कौन सी information is required to organize the lecture? I think all the informations are necessary All. here. All. क्योंकि ऐसी कोई भी information नहीं थी जो कि redundant थी, so all the informations are necessary. Next option. On which day lecture F will be conducted? F कौन से दिन आ रहा है? Thursday. Thursday. So the correct answer will be Thursday. The beauty of these questions is अगर कहीं पे भी एक भी गलत होगा तो आपको ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा. Next is on which day there won't be any lecture? Monday. Monday. So on Monday there won't be any lecture. बस हो गया खत्म. This is the correct answer. ठीक है, this is the correct answer. So thus I have tried to explain that this is the beauty of this topic. You can solve this topic very easily. थोड़ा सा दिमाग लगाओ
और सॉल्व करो. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर टू स्मार्ट. These are one of the toughest questions जिनको ढूंढने में मुझे काफी टाइम लगता है. And I'm very happy to say that you guys are very smart. Very good. Keep it up. So,